افسوس کے بڑے بڑے مفتی اور شیخ الاسلام کہلانے والے یہاں ان حدیثوں کو چھپا کر آخر کس کو راضی کر رہے تھے؟ سرکار فرما رہے ہیں لا عدوا، تو ہمیں تو کروڑوں بار فضاؤں میں اڑتا ہوا کرونا نظر بھی آئے گا تو پھر بھی لا عدوا پر ایمان رکھیں گے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کے جرم کی وجہ سے انہیں کرونا لگے گا، لیکن امت مسلمہ کے لیے جو بالعموم ہے وہ عذاب نہیں ہوگا بلکہ رحمت ہوگی، کہ جس نے اس پر دین چھپایا ہے ہم اس کو ڈیبیٹ کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ طاہر القادری کو میں کہہ رہا ہوں، اور اگر تقی عثمانی بولا ہے تو میں اسے بھی خطاب کر رہا ہوں۔ سب کچھ ہی بند کر دو تو کل انہیں روٹی کون کھلائے گا؟ آج پتا چلے مندر والوں کا اور مسجد والوں کا فرق کیا ہے۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الذی قیل فی شأنہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، والصلاة والسلام على خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین ویا آخر النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ جا کے غریب الغربا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی ہے نہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
रब ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम में एंटी कोरोना सेमिनार में हम सब को शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु कोरोना की आफत से, कोरोना की वबा से तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए, सारी कायनात के लोगों का भला फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल जो लोग मुब्तला हो चुके हैं उनको शिफा अता फरमाए और जो इससे बचे हुए हैं अल्लाह उन्हें हमेशा अपनी तरफ से आफियत और सलामती अता फरमाए। आफत के आने पर सबसे अहम काम अल्लाह की तरफ रुजू करना है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हिदायत हासिल करना है, क्योंकि खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु के अम्र कुन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता और उसने हमें जो कुरान अता किया है वो क़यामत तक के मसाइल का हल है और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो आपने हमें कायनात के तमाम मसाइल जो भी क़यामत तक पेश आने थे उन पर आगाह फरमाया है, मुश्किल का हल बताया है, फितनों से निजात का तरीका दिया है, बीमारियों से महफूज रहने का हमें निज़ाम अता फरमाया है। बहसीयत मुस्लिम हमारे पास इस वक़्त कायनात में सबसे अहम तरीका मौजूद है जिससे इस बहुत बड़ी आफत से महफूज रहा जा सकता है और इससे निजात पाई जा सकती है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसके हमारे पास खजाने ना हों, यानी हर शय के खजाने खा वो किसी तरह की भी है, उसमें सेहत भी है, उसमें मरज़ भी है, उसमें खुशी भी है, उसमें गम भी है, पर सब चीज़ों के खजाने हमारे पास हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिम मालूम, और हम उन खजानों में से नहीं उतारते मगर एक मालूम अंदाज से। तो रब्बे ज़ुल जलाल के यहाँ बीमारियों को भेजने के लिहाज से और बीमारियों को उठाने के लिहाज से कायनात का निज़ाम है और कुरान कहता वइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, बंदा ये एतकाद रखता है कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो वही मुझे शिफा देने वाला है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ दीगर अनगिनत औसाफ़ कमालात हैं, वहाँ आपके मुक़द्दस अस्मा में से मुश्किलें टालने वाली ज़ात, आफ़ातो मसाइब से निजात देने वाली ज़ात, ये आपके तयशुदा अलक़ाब हैं। और आपने फरमाया है कि क़यामत तक अगर कोई शख्स मस्जिद से एक तिनका भी उठा के बाहर फेंकेगा, हदीस सही बुखारी के मुताबिक, तो वो भी मेरी निगाह से गायब नहीं होगा
हयाती खैरुल लकुम व वफ़ाती खैरुल लकुम, ये मौजम औसत में जो अल्फाज हैं उसमें यह है कि मा रअयतु मिन खैरिन हमिदतुल्लाह, क़यामत तक तुम्हारा हर काम मेरे सामने होगा। जब तुम अच्छा काम करोगे तो मैं अल्लाह की तारीफ़ करूँगा। व मा रअयतु मिन शर्रिन अस्तग़फिरु लकुम, अगर तुम्हारा कोई नाज़ेबा काम मैंने देखा तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करूँगा। तो हम मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी के ताबे हैं और हयात और मौत के तमाम तर मामलात में, सेहत और मर्ज़ के तमाम तर अहकाम में, दुनिया और आखिरत के तमाम तर नज़रियात में हम अपनी अक़ल के ताबे नहीं बल्कि शरीयत के हुक्म के ताबे हैं। लम्हे मौजूद में हम ये जो एंटी कोरोना प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका मकसद शरई रहनुमाई है और कोरोना की आफत और इसके वबा के लिहाज से जो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मची हुई है और बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जा रहा है, ऐसे आलम में जो इंसानियत की सही तरीन रहनुमाई है और तहफ़्फ़ुज़ है, यकीनन उसका पैगाम कुरान मजीद, बुरहान रशीद और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ही मौजूद है। इस्लाम एहतियात का हुक्म देता है, परहेज़ करना बीमारी से, और जो दवाई का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें इस्लाम में मौजूद हैं। परहेज़ के लिहाज से, एहतियाती तदाबीर के लिहाज से किसी को रोकना ये हमारा मकसद नहीं। एहतियाती तदाबीर और परहेज़ ये खुद शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा है, लेकिन इन एहतियाती तदाबीर का एक दायरा कार है जहाँ तक शरीयत हमें इजाज़त देती है। और अगर कहीं ऐसी एहतियाती तदाबीर हों कि जिनका बिल आखिर नुकसान फ़ायदे से ज़्यादा हो, तो फिर शरीयत उन एहतियाती तदाबीर को जायज़ करार नहीं देती। ये ऐसी एहतियाती तदाबीर जिससे इस्लाम का जो तशख़्ख़ुस है और इस्लामी तालीमात के लिहाज से जिस बेस पर इस्लाम की नश्व नुमा है उसमें खलल आता हो, तो फिर एहतियाती तदाबीर का दायरा महदूद किया जाता है। यकीनन दवाई लेना, परहेज़ करना ये तकदीर के मुनाफी नहीं, मगर ये रास्ता ऐसा है कि जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक बहुत से ऐसे मराहिल हैं जहाँ से तकदीर की खिलाफवर्जी हो जाती है, और फिर वो मसला तकदीर ईमान का वो शोबा है कि मुस्लिम शरीफ में है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क़दरिया के बारे में कहा। अभी सहाबी जिंदा थे तो क़दरिया फ़िरका पैदा हो गया बसरा में। फरमाया कि ये जो तकदीर के मुनकिर लोग हैं बसरा में जो पैदा हुए, कलमा गो थे, कुरान और सुन्नत का दर्स देते थे। फरमाया लौ अन्ना लि अहदिहिम मिस्ला मिलिल अर्दि ज़हबा मा क़बिल अल्लाह हत्ता युमिन बिल क़द्र, कि अगर क़यामत के दिन ये सारी ज़मीन सोने की भरी हुई बतौर फ़र्ज अल्लाह को पेश करे, सिर्फ एक बंदा अपनी गलती का कफ़ारा कि रब जो मैंने तकदीर के मसले में गलती की थी वो मुझे बख्श दे और ये सारा सोना कबूल कर ले, ये मैं फिदिया दे रहा हूँ, तो फरमाया मा क़ाबिल अल्लाह, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हालांकि ये तो किसी के बस में ही नहीं कि वो सारी ज़मीन सोने से भर सके, लेकिन अगर बतौर फ़र्ज भर भी ले तो अल्लाह फरमाएगा कि ये तू बहुत थोड़ा रेट लगा रहा है अपने तकदीर पर ईमान का। तकदीर पर ईमान की इतनी कीमत नहीं है,
لہٰذا آج تجھے جہنم جانا پڑے گا، کیونکہ